एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे और आपका पूरा वीक बहुत ही अच्छा गया होगा। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ हम लोग अपना जो दिन है वो आगे बढ़ाते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैंने यहाँ पर व्लॉग रिकॉर्ड किया है और सुबह सुबह जो है बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हेल्दी एंड फुलफिलिंग सा। तो आज मैं मसालेदार उपमा बनाऊंगी जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैं ऐड करूंगी। अच्छा, सिया के लंच बॉक्स में थोड़ा उपमा, कुछ फ्रूट्स और एक दो कुकीज़ रख दूंगी। तो इस तरह से यहाँ सारी चॉपिंग डन हो गई है। ऑन द अदर हैंड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय की रेसिपी तो आप लोगों को कई बार शेयर की है। अच्छा, उपमा बनाने के लिए ना आज मैं घी का तड़का दूंगी। इसमें तो 2 चम्मच घी ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं किया मैंने। और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग ऐड की है, साथ में चना दाल, उड़द दाल, पीनट्स ऐड कर दिए हैं। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आफ्टर दैट थोड़ा करी लीव्स ऐड की है, अनियन ऐड की है। इसको भी हम घी में थोड़ा फ्राई करेंगे तो फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाएगा। शिमला मिर्च, गाजर या जो भी सब्जियां हो, मटर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियां डाली। मसालों में मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 कप रोस्टेड रवा इसमें ऐड कर दिया उपमा वाला, और 3-3.5 कप पानी ऐड किया इसमें। कवर करके कुक किया, 1-2 बार चलाया और हमारा हेल्दी सा उपमा यहाँ पर रेडी हो गया। आप ना कोकोनट की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हो। बस मैंने थोड़ा सा ऊपर से पनीर और धनिया के साथ गार्निश किया। हे फ्रेंड्स, सो रिसेंटली आई ऑर्डर्ड अ मेकअप वैनिटी फ्रॉम Yita Home as a part of my collaboration with Yita Home, and it is a beautiful furniture brand that specializes in creating sleek, modern, contemporary, minimalistic and elegant furniture. Here my husband is helping me to do the unboxing and to do the assembly as well. And Yita Home is set to become the go-to brand for anyone looking to create stylish, affordable and modern home. So friends, this makeup vanity from Yita Home, it came in 2 boxes, and the good thing is all the step-by-step instructions are provided in this manual, so you can easily read the manual and start fixing the furniture. Also, we are opening the second box here, and all the packaging is very much safe. Each and every corner of the furniture is well packed, as you can see, and all parts and accessories of the furniture, they are labeled with the alphabets or numbers, so very easy to assemble it all together. Also, if there is a missing part or a breakage, just contact them. They have a good customer service as well as damage compensation. Also, there is a 30-day return policy on Yita Home. Yita Home offers free shipping to most of the states in the USA. I'm mentioning them on the screen, you can see. So friends, here we have done the unboxing part of our makeup vanity table with mirror and light in white drawers for bedroom. Here are all the parts, and Yita Home offers bedroom, home, office, entryway, living room, kitchen and dining, bathroom and lighting and so on. We are fixing it all together because all the parts are well leveled. Also, this makeup vanity is available in black color on their website. You can choose white or the black color option, or you can choose the bulb or the LED stripes option. So here we have fixed the mirror as well, and let me show you the final look. So friends, here is the final look of this beautiful white colored makeup vanity from Yita Home. It is larger mirror with adjustable light measuring 31 by 20 inch, and this vanity mirror features a wide angle view. There are so many LED bulbs with 3 color modes so that you can customize your light according to all your needs. In this vanity, there is a built-in charging station and a hair dryer rack. So it is a multifunctional makeup desk with 2 standard plug sockets, 2 USB ports and 1 hair dryer rack. So this helps to easily charge your mobile, as well as you can quickly and easily use hair dryer, or you can use your curling iron and so on. This makeup vanity can be used for your dressing room, bedroom, salon or for live makeup tutorials. Also, this can be a very good birthday gift idea for anyone loving makeup or any teenagers and so on. So friends, if I talk about the storage space, there is ample storage space to store your various items. This vanity set comes with 4 large drawers to stash your makeup, perfume, jewelry, hairbands, rubber bands and so on. So here I am arranging everything together. This makeup vanity is quite affordable. I'm sharing the link of this beautiful makeup vanity in my description box below the video, as well as I'm sharing all the details of Yita Home as well as the discount code in my description box. You can check that. In today's scenario, Yita Home is making furniture which looks stylish, which are affordable and according to the modern needs. There is a 30-day return and refund policy on Yita Home.
Along with the vanity, there comes a soft cushioned stool which provides comfort at a suitable height. So when you are tired or simply you want to sit and relax and use the vanity to get ready for the day, you can do so as per your needs. And when you are done using the stool, you can simply stack it back inside, so this saves a lot of space. To save the mirror from breaking easily, the design is anti-tip, so behind the vanity mirror, so that for its safety and protection. Also, at present there is spring sale going on Yita Home Furniture. Use my code IMU to get 15% off all the items on the Yita Home. Thank you. हे एवरीवन, सो ब्रेकफास्ट इज़ ऑल डन और अच्छा लगा सब लोगों को ब्रेकफास्ट, स्पेशली मम्मी को अच्छा लगा। और ना अभी लंच बनने में तो टाइम है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों से बात करने आ गई हूँ यहाँ पर। और टुडे आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज मैं बात करूंगी माय रिलेशनशिप विद माय मदर इन लॉ। तो मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं, काफी सारे कमेंट्स आते हैं, मोस्टली तो पॉजिटिव ही कमेंट्स होते हैं और एक दो बार कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगी वो करूंगी। सो माय रिलेशनशिप विद माय मदर इन लॉ इज वेरी रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ। मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और काफ़ी ध्यान रखती हूँ उनका। पुष्पेंद्र की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा दोनों को, भाई भाभी सबकी पुष्पेंद्र मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। भाई तो खैर छोटा है, स्पेशली मम्मी पापा की बात करूँ बहुत ध्यान भी रखते हैं, हमेशा कॉल करके पूछते हैं। पापा मेडिसिन वगैरह जब लेने जाते हैं कहीं पे तो पूछते हैं कैसा रहा अपॉइंटमेंट, ये सब। तो मतलब पुष्पेंद्र मेरे पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इन द सेम वे इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी एज वेल कि मैं भी उनके पेरेंट्स का ध्यान रखूं। पुष्पेंद्र के पापा तो नहीं है इस दुनिया में अभी, बट हाँ जब तक थे वो हमारे साथ जब भी थे तो उस टाइम पे मैं काफ़ी अच्छे से उनके साथ भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती थी। और इन द सेम वे मम्मी के साथ भी ऐसा है। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सिंपल सीधी सादी लेडी है। हम लोग जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। शादी के शुरू के सालों में मेरी मदर इन लॉ गाँव में रहती थी। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना वढ़ाना था, तो मेरे फादर इन लॉ उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। तो फिर ये लोग बच्चों को लेके बाहर निकले, सो दैट जहाँ पर पापा की पोस्टिंग होती थी वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो फिर इस तरह से मम्मी शहर वगैरह में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर शहर के जो तौर तरीके होते हैं वो सीखे, बट बेसिकली गाँव से ही बिलोंग करते हैं हम लोग। जो एक जनरेशन गैप है जिसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस है मेरी मदर इन लॉ का, वो थोड़ा सा जो ओल्ड फैशन वाला है, ट्रेडिशनल आप कह सकते हो, वो थॉट प्रोसेस है। तो आई थिंक उसको बदला नहीं जा सकता है। तो आई हैव एक्सेप्टेड द वे शी इज, यही बात है। काफी आजकल ट्रेंड है सोशल मीडिया पे कि मदर इन लॉ इज कुकिंग ईच एंड एवरीथिंग, सारा फूड बना रही है, सब कुछ बना रही है। और कुछ लेडीज वगैरह रील्स बनाती हैं कि मेरी मदर इन लॉ देखो मेरी मदर की तरह हैं, ये है। तो देखो हर किसी का अलग अलग केस होता है, सिनेरियो होता है, यू नेवर नो। बट यार हमारे केस में ऐसा नहीं है। शी इज नॉट लाइक माई मॉम। अगर मेरी मॉम की बात करो तो यार मैं तो ये बोल दूंगी कि आज मेरा कुकिंग का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो मम्मी हैंडल कर लेंगी। बट इन आवर केस ऐसा नहीं हो सकता है। आई हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग एवरी डे। आई रिस्पेक्ट हर, आई ट्रीट हर वेरी नाइसली, जस्ट लाइक माई मदर इन लॉ। एंड मॉम की तरह तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पर बस शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं करूंगी मैं। सो कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे बच्चे हमको देख के लर्न करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सही है। जब मेरी दादी थी तो मम्मी को हमने हमेशा देखा है, दादी को बहुत अच्छे से रखती थी मम्मी, उनका बहुत ध्यान रखती थी। और मेरी शादी थी ना, तो उस टाइम पे मेरी दादी को पूड़ी पकवान और जो शादी वाले खाने होते हैं वो नहीं खाना था। तो मम्मी ने किसी और को नहीं बोला। वैसे तो जो पर्सन शादी वाला मेन पर्सन होता है वो बिजी होता है, लेकिन मैंने खुद देखा कि मम्मी ने फटाफट से मेरी दादी के लिए 2 रोटी और दाल वगैरह छौंक दी थी। क्योंकि अगर किसी और को बोलती, वो किसी और को बोलता, तो पता नहीं दादी को टाइम से खाना मिलता भी कि नहीं मिलता। तो मम्मी ने खुद ही फटाफट से गैस ऑन करके काम कर दिया। तो मेरी मम्मी ने, हमने हमेशा देखा है दादी का बहुत ध्यान रखा है। और जो आपके पेरेंट्स करते हैं वो आप देख कर ही सीखते हो। तो वही है, यहाँ पर मैं आई हूँ तो उसके बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने जो इन लॉज हैं उनका ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। मम्मी की बात तो खैर उनके ज़माने की रही, लेकिन यार हम आज की जनरेशन के लोग हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जब जैसे कि मदर इन लॉ ने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं पसंद आया या फिर मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ।
तो ऐसे मौकों मुझे शुरू से ही सिखाया है कि इट्स ऑलवेज गुड कि तुम अपना पॉइंट रखो, बट इन अ रिस्पेक्टेबल वे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको कोई जज नहीं करेगा या गलत नहीं बोलेगा। आप सही चीज़ के लिए डेफिनेटली बोलना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मम्मी ज़्यादा काम वगैरह क्यों नहीं करती, ज़्यादा हेल्प क्यों नहीं करती। तो देखो यार, मैं उनको कुछ भी खुद से तो नहीं बोलती हूँ कि आप ये करिए या फिर ये करिए। खुद मन होता है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करवा ही देती हैं। बाकी देखो यार, अब वो यंग वाला टाइम तो नहीं रहा है उनका, अब ऑलमोस्ट एज होती जा रही है, ऑलमोस्ट शी इज अराउंड 70 ईयर्स। तो इसलिए मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, और उनका खुद से मन होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत करा ही देती हैं। आई होप आप लोगों को ना इस टॉपिक पे डिस्कस करना अच्छा लगा होगा। ऑल्सो वो ना यूएस में सेकेंड टाइम आई हैं, 2018 में वो आई थी यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए, यहाँ पर रह के गई थी, उनको बहुत अच्छा लगा था। और फिर वो इसीलिए अगेन आई हैं कि फिर से मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करें। और कई लोग पूछते हैं कि मम्मी इंडिया में अकेले रहती हैं या कैसे रहती हैं, तो वो मैं फिर कभी डिटेल में किसी और व्लॉग में डिस्कस करूँगी। और अभी यहाँ पर मम्मी 6 मंथ्स रहेंगी, और भगवान करे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, तो फ्यूचर में भी वो कभी ना कभी अगेन हम लोगों के पास रहने के लिए आएंगी। तो चलिए अभी चलते हैं लंच बनाने के लिए। काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ कर दी। सो फ्रेंड्स, आज लंच में बनेगा सरसों और पालक का साग, और मम्मी बोली कि मैं ये चॉप कर देती हूँ, तुम अपने बाकी काम कर लो। तो मैं बाकी काम करने लगी, और यहाँ पर मम्मी ने इसको फाइन चॉप कर दिया है। तो यहाँ पे सरसों चॉप कर दिए 2 बंडल, और इधर है पालक। तो साग बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में ये सरसों जो है ये ऐड कर दिए वॉश करके, और साथ ही थोड़ा पालक भी ऐड कर दिया है। ऊपर से थोड़ा जिंजर और गार्लिक क्रश्ड ऐड किया, थोड़ा हरा धनिया क्रश करके मतलब फाइन चॉप करके ऐड किया, और फिर पानी डाल के और इसको हम ना 2-3 विसल लगा लेंगे। इधर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर जो है उसको मिक्स कर दिया ठंडे पानी में, और इसको थिक करने के लिए जब प्रेशर कुकर की विसल खुली ऐड किया। तड़के के लिए मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, और इसमें थोड़ा ज़ीरा और हींग ऐड किया है, और उसके बाद हम इसमें तड़का देंगे हरी मिर्च और गार्लिक का, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिया है, साथ में सॉल्ट डाला है, और इसको हम मिक्स करके इसको पकाएंगे काफ़ी अच्छे से। इसको हमें 15-20 मिनट और पकाना है, तो जो फ्लेवर है वो और एनहेंस हो जाएगा साग का। और चाहो तो लास्ट में थोड़ा बटर डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पनीर डाला है बच्चों की डिमांड पे। तो यहाँ पर मैंने इसको गेहूं की रोटियों के साथ सर्व किया है, क्योंकि और कोई रोटियां बनाने का टाइम नहीं था और डिले हो जाता इसीलिए। सो लंच इज सर्व्ड हियर। सो फ्रेंड्स, शाम को मैंने सब लोगों के लिए चाय बना दी थी, और डिनर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वो जो सब्ज़ी हमने साग वाली बनाई थी वो रखी हुई है, और मम्मी बोली कि मक्के की रोटी बना लेते हैं। तो मक्के का आटा लास्ट ग्रोसरी वाले का बचा हुआ है, और उसमें थोड़ा सा रागी फ्लावर ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, और गुनगुने पानी से मम्मी इसका डो रेडी कर देंगी। और बस थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो करवा दी है मैंने। उसके बाद मम्मी डो रेडी करके रोटियां जो है बनाएंगी, मैं सिकवा दूंगी, और घी लगा के सब लोगों को सर्व कर दूंगी। तो इस तरह का हमारा ये रूटीन रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग द वीडियोज़। जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे। बाय, टेक केयर।